Hello students, so welcome to Dr. Heather Maths classes. So today we will start the topic integration by partial fractions. So in this topic there are 4 or 5 types of partial fraction. So we will discuss one by one, and the first type of partial fraction I am going to take, okay, that is exercise 7.5, and the first type of partial fraction is exercise 7.5, and the form is px plus q upon x minus a into x minus b is equals to a upon x minus a plus b upon x minus b, and px square plus qx plus r divided by x minus a into x minus b into x minus c, and partially it will be a upon x minus a plus b upon x minus b plus c upon x minus c. So let me explain about these. Actually both are same type of form, only the difference is here the two linear factors, in the denominator three linear factors. But see, this is a proper fraction. Proper fraction means the degree of numerator is less than the degree of denominator, right? So when the fraction is proper means when the linear numerator is linear and denominator is quadratic polynomial, so it will be always in this form. See, here is the, and again degree of numerator is, degree of denominator is greater than degree of numerator. Here the degree will be x cube means x degree 3, here x square means degree 2. So this degree of denominator is greater than degree of numerator, or you can say degree of numerator is less than degree of denominator. This is proper fraction. Okay, so how we will simplify? We will rewrite this question in this form, and after taking the LCM of this and this will be cancelled out. Then we will find the value of a and b, and after getting the value of a and b, we will substitute and then we will integrate. So on the basis of these two forms, or you can say one form, how many questions of your exercise are based? The question number 1, 2, 3 and 4, 5, 4, 5, 10 and 11. These questions are based on these forms. Okay, got it? So I will discuss one by one. Okay, so now move to the exercise 7.5. Okay, okay, so exercise 7.5, the very first question is the very first question is question number 1, x upon x plus 1 into x plus 2, right? This is the question. So we have to integrate. So this can be written as by the partial fraction x upon x plus 1 into x plus 2. This can be written as a upon x plus 1 plus b upon x plus 2. Now take the LCM. The LCM will be same, x plus 1 into x plus 2. So this will be cancelled from both the sides. So x is equals to a into x plus 2 plus
b into x plus 1, and now we will find the value of a and b. How we will find the value of a and b? So we will find the value of a and b by, you see, this is the linear factor, so put x plus 2 as 0, then x plus 2 is 0, it means x is equals to minus 2, so this will be minus 2, and minus 2 plus 2, a, this is 0, and b into minus 2 plus 1 minus 1, so we got the value of b, the value of b is 2. And now put x plus 1 as 0, so it means x is equals to minus 1, so this is minus 1, a into minus 1 plus 2, and this will be 0. So this is minus 1 is equals to a. So we got the value of a and b, and put the value of a and b in the first relation and integrate. Okay, so integration of x upon x plus 1 into x plus 2 dx is equals to the value of a is minus 1 upon x plus 1 dx, and the value of b is 2, so this is 2 integration of 2 upon x plus 2 dx, and integration of 1 upon x plus 1, that is equals to log modulus of, so this is minus log modulus of x plus 1, and plus 1 upon x means log modulus of x plus 2, and plus c, and you may leave up to here, or if you want to simplify further, so this can be written as minus log x plus 1 and plus log modulus of x plus 2, and this will be whole square and plus c. So further you can apply the property of log, so log of x plus 2 whole square upon x plus 1, because here is minus, and plus c, or this is the answer. Okay, so if you want to simplify further, you can simplify, otherwise we may leave up to here. Okay, now the next question I am taking, question number 2. Okay, second question, the question number 2, and the question is x 1 upon x square minus 9. So this can be written as, by applying the identity a square minus b square, 1x minus 3 into x plus 3. Okay, so numerator, of course it is a proper fraction, so the partial will be, this can be written as a upon x minus 3 plus b upon x plus 3, and now find the value of a and b, and after taking the LCM will remain same, so this will be cancelled out. So 1 is equals to a into x plus 3 and plus b into x minus 3, right? And now put x plus 3 as 0 and x minus 3 as 0, and calculate, find the value of a and b. So put x plus 3 is 0, so x is equals to minus 3, so this is 1, this will be 0, and plus b into minus 3 and minus 3, that is minus 6, so 1 is equals to minus 6b, so therefore b is equals to minus 1 by 6. We got the value of b, this is minus 1 by 6. And now put the second factor, x minus 3 as 0, so x is equals to 3, so 1 is equals to a into 3 plus 3, 6, and this will be of course 0, so the value of a is equals to 1 by 6. So we got the value of a and b, and put the value of a and b in the first relation, so integration of 1 upon x minus 3 into x plus 3 dx is equals to, the value of a is 1 by 6, integration of dx upon x minus 3. Okay, and the value of b is minus 1 by 6, integration of 1 upon x plus 3. So the integration of 1 by x, that is log x, so this is 1 by 6 log modulus of x minus 3, and minus 1 by 6 log modulus of x plus 3, and
with C and take 1 by 6 as common and apply the rule of log, property of log. So 1 by 6 is coming common, and finally it is log of x minus 3 divided by x plus 3, because here is minus sign. Log A minus log B is equals to log A upon B and plus C. So this is the final answer of this question. Okay. Now I am going to question number 3. The third question is, now there are three factors. Okay. So question number 3, this is x upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. This is the question. Okay. So in this question, we can rewrite this is equals to x upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is equals to a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3. एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि पहले वाले टर्म को हम ए लिखेंगे, दूसरे को बी, तीसरे को सी, किसी को भी आप ए बी सी सपोज कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज नो हार्ड एंड फास्ट कंडीशन. Okay, so now take the LCM will remain same, so this denominator will cancel. So x minus 1, so x is equals to a into LCM लेने के बाद x minus 2 x minus 3 कैंसिल होगी, x minus 1 कैंसिल हो गया. So x minus 2 into x minus 3 plus b into x minus 2 कैंसिल हो जाएगा भाई. So x minus 1 into x minus 3 plus c into x minus 3 कैंसिल हो गया, तो x minus 1 into x minus 2. Okay. Now there are three linear factors. Put 1 by 1 as 0. है ना? This is the very simple method. So put x minus 1 as 0. So it means x is equals to 1. So here it will be 1 and a into 1 minus 2 minus 1 and 1 minus 3 minus 2, and this will be 0 and this will be 0. Okay. So we will get the value 1 is equals to 2a. So therefore a is equals to 1 by 2. Okay. Now put second factor x minus 2 is 0, means x is equals to 2. So 2 is equals to this will be 0 and plus b into 2 minus 1, that is 1, and 2 minus 3 minus 1, and this will be 0. So here will be minus b, so b is equals to minus 2. Okay, because minus b is equals to 2, so b is equals to minus 2. Okay. Minus 2 or something I have written wrong. The question is x minus 1. I have taken the fourth question. Question number 4. Third question is 3x minus 1. Here x minus 1, x minus 2, x minus 3. So this is question number 4, not 3. Okay. So the fourth question. Third I have left for you. So fourth question, the value of b is this. Now put third factor is x minus 3 is equals to 0. So therefore x is equals to 3. So this is equals to 3 is equals to, now this will be 0 and b also will be 0 because 3 minus 3 is 0, and c into 3 minus 1 2 and 3 minus 2 1. So 3 is equals to 2c. So therefore c is equals to 3 by 2. So in this way we got the value of a, b and c. और जब value of a, b, c की value मिल गई, इसको हम first relation में रख करके और integrate कर दें. Right? Okay. So from first,
So the integration of x upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 dx is equals to the value of a. A is 1 by 2. So this is 1 by 2 integration of dx upon x minus 1, and the value of b is, what is the value of b? This is the value of b minus 2, and this is the value of a, and this is the value of c, right? So the value of b is minus 2. So here we will write minus, and 2 integration of dx upon x minus 2, and the value of c is 3, so it is constant, so we can write dx upon x minus 3 and apply the integration of 1 by x, that is log modulus of x. So this will be 1 by 2 log modulus of x minus 1, and here it will be minus 2 log modulus of x minus 2 and plus 3 by 2 log modulus of x minus 3 and plus c, and if there is no further solution means we can leave up to here. Okay, got it? In the same way you will simplify question number 3. So this question number 3 I have left for you. Now I am coming to question number 5. Okay, fifth question. So the question number 5 is fifth question, and the fifth question is 2x upon x square plus 3x plus 2. 2x upon 3x square plus 2x upon x square plus 3x and plus 2. This is the question. So we will rewrite this question up by splitting the middle term. So this can be written as 2x upon x square plus 2x and plus x and plus 2. Okay, further this can be written as 2x upon x is coming common, x plus 2, and 1 is common, so x plus 2. So finally it is 2x upon x plus 2 into x plus 1. Now this question reduced in the form, on the form. Okay, so now this apply the partial. So a upon x plus 2 plus b upon x plus 1. Okay, put it relation number 1, and now LCM will remain same. So 2x is equals to a into x plus 1 and plus b into x plus 2. Okay, and now find the value of a and b. So put x plus 1 as 0. So it means x is equals to minus 1. So this will be minus 2 and this will be 0, and b into minus 1 plus 2, that is 1. So we got the value of b. The value of b is minus 2. Okay, and now put another factor x plus 2 as 0. X plus 2 as 0. So it means x is equals to minus 2. So this will be minus 4, and a into minus 2 plus 1 minus 1, and this will be of course 0. So therefore the value of a will be 4, because this minus and this minus will cancel out. So the value of a is equals to 4. Okay, and now from the first, so integration of 2x upon x plus 2 into x plus 1 dx is equals to, the value of a is 4, so 4 and dx upon x plus 2, and the value of b is minus 2, so dx upon x plus 1. So this is 4 log modulus of x plus 2 and minus 2 log modulus of x plus 1 and plus c, right? Okay, got it? Now the next similar type of question is question number 10. Okay, 10th question and 11th question. So 10th question I will simplify. Okay, and 11th you will try. Question number 10. I am coming to question number 10. Okay,
So the question number 10. And the 10th question is 2x minus 3, 2x minus 3 upon x square minus 1 into 2x plus 3. 2x plus 3. This is the question. So this can be written as 2x minus 3 upon x minus 1 into x plus 1 into 2x plus 3, right? By applying the identity a square minus b square. So now the denominator will cancel out because the LCM will remain same. So 2x minus 3 is equals to 2x minus 3 is equals to, so the LCM will be, पहले इसको रीराइट कर लेते हैं, इसके बाद अप्लाई करें. So this can be written as 2x minus 3 upon x minus 1 into x plus 1 into 2x plus 3 is equals to a upon x minus 1 plus b upon x plus 1 and plus c upon 2x plus 3. Applied the partial fraction and put it relation number 1. Now the three linear factors, take one by one. So put x minus 1 as 0. So it means x is equals to 1. So, but before that, take the LCM, then we will start. Okay. So the LCM will remain same. So left hand side 2x minus 3, a into x minus 1 cancel हो जाएगा भाई, x plus 1 into 2x plus 3 and b into x plus 1 cancel हो गया, तो क्या बच गया आपका x minus 1 into 2x plus 3 and plus c into 2x plus 3 cancel हो गया, तो क्या बच गया x minus 1 into x plus 1. Okay. Now put x minus 1 as 0. So it means x is equals to 1. So left hand side is 2 1s are 2 minus 3. And this is a into 1 plus 1 2 and into 1 2s are 2 plus 3 5. Okay. 1 2s are 2 plus 3 5. And this will be 0. And this will be also 0. So we got the value 2 minus 3 minus 1 and this is 10a. So therefore the value of a is equals to minus 1 by 10. We got value of a. Now find the value of b. So put the second linear factor. Put x plus 1 as 0. So x is equals to minus 1. So here it will be minus 2 minus 3. Then minus 1 plus 1 0. And plus b into minus 1 minus 2, and this will be minus 2 plus 3 यानी कि minus 2 plus 3 and here it will be 0. So minus 5 and this is 1 minus 2 minus 2b. So the value of b is equals to 5 upon 2. So we got the value of b, that is 5 upon 2. Okay. Now the third linear factor is put 2x plus 3 as 0. So this means the value of x is equals to minus 3 by 2. Now simplify from here. So 2 into minus 3 by 2 and minus 3 is equals to. So this will be 0 of course. And this b term will be also 0. And now what about c? This is a minus b, a plus b, x square minus 1. So minus 3 by 2 and minus 1 and minus 3 by 2 plus 1. So this is cancelled, minus 3 and minus 3. This is minus 6. Okay. And here we will apply the a plus b and a minus b. So or minus 5 by 2 or plus c into is equals to c into minus 5 by 2 into this will be how much? Minus 1 by 2. Minus 1 by 2. So 5 by 4. 5 by 4. Okay. So the value of c minus 6 is equals to 5 by 4
into C. So C is equals to minus 24 upon 5. So this is the value of C. Okay, minus 24 upon 5. So we got the value of A, we got the value of B, we got the value of C. Now put all this value in the first relation. So from first, the integration of 2x minus 3 upon x square minus 1 into 2x plus 3 is dx is equals to the value of A minus 1 by 10 and dx upon x minus 1, and the value of B. The value of B is 5 by 2. So plus 5 by 2 and integration of dx upon x plus 1, and the value of C is minus 24. Minus 24 upon 5 and dx upon 2x plus 3. So this is minus 1 by 10 log modulus of x minus 1 and plus 5 by 2 log modulus of x plus 1 and minus 24 upon 5 log modulus of 2x plus 3 and divided by, because the coefficient of x is having 2, so it should be divided by 5 by 2. Okay, so it should be divided by 2. Okay, so and plus C. So the final answer we may write 5 by 2. Take the positive one. 5 by 2 log modulus of x plus 1 and minus 1 by 10. Minus 1 by 10 log modulus of x minus 1 and minus 12 to the 24 minus 12 upon 5 minus 12 upon 5 log modulus of 2x plus 3 and with constant C, and this is the final answer of this question. Okay, so in the same way you will try question number 11, because 11th question is 5x upon x plus 1 into x square minus 4. So you will write like this. I am just giving the hint and then you will complete 5x upon x plus 1 into x square minus 4. So you will write 5x upon x plus 1 into x minus 2 into x plus 2, and now then apply the partial a upon x plus 1, b upon x minus 2 and c upon x plus 2 and proceed like this and get the value of ABC. Okay, got it? Okay, so now the next form I am going to take the repeated factor form. Means if is in the question is in this form, a px plus q upon x minus a whole square, or px square plus qx plus r upon x minus a whole square into x minus b, राइट? अब यहाँ पर और यहाँ पे क्या फर्क है? मैं दोनों को एक ही फॉर्म में रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक ही लीनियर फैक्टर है जिसका रिपीटेड है, यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर है और एक रिपीट हो रहा है, लेकिन इन दोनों सिचुएशन में क्या है? दे आर प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाई दे आर प्रॉपर फ्रैक्शन? बिकॉज the numerator is, degree of numerator is 1 and degree of denominator is 2. जब इसको आप ओपन करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो x क्यूब हो जाएगा और यहाँ x स्क्वायर है. So in both the situation it is proper fraction, means degree of numerator is less than the degree of denominator. Okay, so this can be written as, by the partial fraction, a upon x minus a upon x minus a this is a upon x minus a and plus b upon x minus a whole square. Okay, and in this form this can be, अब इसमें से देखिए, आप अगर इसको पहले को फैक्टर को a लेके सकते हैं, इसको b लेके चल सकते हैं, ठीक है, दूसरा सी हो जाएगा, या इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए तो सी बन जाएगा, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं. इट इज अप टू अस.
बिकॉज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इसको पहले ले या इसको पहले ले, जिस जो भी ले लीजिए, मर्जी आपकी। मैं ले रहा हूं a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए एंड देन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बिकॉज दिस फैक्टर इज रिपीटिंग। ठीक है, समझ में आई बात? इस बेस के ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है आपके पास। कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 14। ये 3 क्वेश्चन आपके इस 2 फॉर्म पे हैं, राइट? है ना? तो मैं सीरियल ऑर्डर से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके एज पर द फॉर्म्स। ओके, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, राइट? ओके, so the next question is question number 8. Eighth question is x upon x minus 1 whole square into x plus 2. This is the question. So this can be written as a upon x plus 2 plus b upon x minus 1 plus c upon x minus 1 whole square. Partial हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। देन एलसीएम ले लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे तो एल्स का एलसीएम सेम ही आ जाएगा। सो दिस इज x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस टू, कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? x माइनस वन का होल स्क्वायर। b इंटू एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो एक x माइनस वन और x प्लस टू, और c में x माइनस वन होल स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बच गया आपका? c इंटू एक्स प्लस टू, राइट? ये बच गया। अब इसके बाद एक लीनियर फैक्टर आपका x माइनस वन है, दूसरा लीनियर x प्लस टू है। थर्ड के लिए मैं एक मेथड आपको बताऊंगा कि कोफिशिएंट को इक्वेट करके निकालना, राइट? हम लोग पहले वाले फॉर्म में भी इक्वेटिंग कर सकते थे, बट इक्वेटिंग थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने लीनियर फैक्टर को जीरो रख करके सॉल्व किया ताकि आसानी से सॉल्व हो सके। सो पुट एक लीनियर फैक्टर हमारा है x प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब हो गया x इज इक्वल्स टू माइनस टू। सो दिस इज माइनस टू a इंटू माइनस टू माइनस वन होल स्क्वायर, और ये जीरो हो गया और ये भी आपका जीरो हो गया। सो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री स्क्वायर 9, सो 9a, तो a की वैल्यू आ गई आपकी माइनस टू अपॉन 9। वी गॉट द वैल्यू ऑफ a, this is minus 2 upon 9. Okay, now put x minus 1 as 0, so x is equals to 1, यहाँ रख दीजिए भाई। तो 1 is equals to a into 1 minus 1 0, तो पहला पार्ट 0 हो गया आपका, दूसरा पार्ट भी आपका 0 हो जाएगा, 1 minus 1 0 हो गया। तीसरा c into 1 plus 2 यानी कि 3, तो 3c, so c की वैल्यू आ गई 1 by 3, so we got the value of c, that is 1 by 3। अब हमें पास a निकल के आ गया, c निकल के आ गया, अब हमें b फाइंड करना है। तो b फाइंड करने के लिए आप यहाँ देख लो कि क्या है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर b है हमारा। तो हम एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को इक्वेट कर दें दोनों तरफ, ठीक है, राइट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी कर सकते थे, कांस्टेंट भी कर सकते थे, बट वो लंबा हो जाएगा, हमें थोड़ा टाइम को सेव रखना है। तो लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो लेफ्ट साइड में कोई भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या हो गया सर? जीरो हो गया। और जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए भी है यहाँ पे, तो ए प्लस बी हो गया, चूंकि बी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी हो गया। ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस टू बाई नाइन, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू 2/9, चूंकि माइनस 2/9 है, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया
तो 2/9 आ गया। तो इस तरह से a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू आ गई, और इन सारी वैल्यूज को कहाँ रख दें? फर्स्ट रिलेशन में रख देते हैं, पार्शियल हो गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो फ्रॉम द रिजल्ट नंबर 1, integration of x upon x minus 1 whole square into x plus 2 dx is equals to a, the value of a minus 2/9 and dx upon x plus 2, and plus b, the value of b is 2/9 and dx upon x minus 1, and the value of c, the value of c is, what is the value of c? 1/3. So plus 1/3 dx upon x minus 1 whole square. Okay. Now क्या बन गया ये आपका? ये तो ये बन गया आपका -2/9 log मॉडुलस ऑफ x plus 2 plus 2/9 log मॉडुलस ऑफ x minus 1 plus 1/3। अब ये क्या बनेगा आपका? x minus 1 का होल स्क्वायर है भाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? अगर हम इस पावर को ऊपर उठा लेते हैं तो x -1 टू दी पावर -2 हो गया, और -2 + 1 है ना, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 का x टू दी पावर n का फॉर्म आ जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/3 इंटू x, यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा है तो मैं इसको इधर लिखना चाह रहा हूँ। ओके, सो प्लस 1/3 और इंटू x -1 टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 एंड प्लस c, राइट। एंड यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो 2/9 कॉमन ले लें, ये प्लस में आ जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ x -1 अपॉन x + 2 हो गया आपका। ठीक है भाई, और क्या बच गया? प्लस माइनस माइनस -1/3 और x -1 अपॉन -1, तो ये नीचे आ जाएगा, है ना भाई, नीचे आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन x -1, ओके, एंड प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8. Okay, got it. Now I am coming to question number 9. Question number 9. Ninth question. And ninth question is 3x plus 5. 3x plus 5 upon x cube minus x square minus x plus 1. राइट? अब देखिए इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में कैसे ले जाएं, क्योंकि है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका डिग्री 3 है, न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, तो दिस कैन बी रिटन एज 3x plus 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दे, x -1 कॉमन निकाल देते हैं, x -1, so 3x plus 5 upon x -1 is again common, and x square minus 1, so this is 3x plus 5 x -1, or this can be written as x -1 into x plus 1, तो ये आ गया आपका 3x plus 5 upon x -1 होल स्क्वायर इंटू x plus 1, आ गया ना फॉर्म आपका। ठीक है, अब फॉर्म लगा देते हैं, so this can be written as, so 3x plus 5 upon x -1 whole square into x plus 1 is equals to a upon x plus 1 plus b upon x minus 1 and plus c upon x minus 1 whole square. ठीक है, आ गया फॉर्म आपका, कोई परेशानी नहीं है। फर्दर वैसे ही सिंप्लीफाई कर दे भाई, एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम यही आ जाएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 3x plus 5 a into x plus 1 कैंसिल हो गया, तो x -1 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस b इंटू एक्स -1 कैंसिल होगा तो एक -1 बचेगा, और x plus 1 ये हो गया,
तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन हो गया, और c ये कैंसिल हो गया आपका, तो c इंटू एक्स प्लस वन आ गया। ठीक है, हो गया भाई। अब एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक लीनियर फैक्टर एक्स प्लस वन है और एक एक्स माइनस वन है, और तीसरे की वैल्यू जो भी होगी इक्वेटिंग से निकालेंगे। सो पुट x plus 1 as 0, it means x is equals to minus 1. So minus 3 plus 5, 2, minus 1 minus 1, minus 2 square, 4, 4a, and this is 0, and this will be also 0. So the value of a is equals to 2 by 4, that is 1 by 2. So we got the value of a. a की वैल्यू आपकी आ गई 1 by 2. Okay, now put x minus 1 as 0, so it means x is equals to 1. यहाँ रख देते हैं भाई, 1 3 जा 3 प्लस 5 8 हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड में a आपका 0 हो गया, a इंटू 0, ये भी आपका 0 ही आ जाएगा b, और c हो गया आपका c इंटू एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 2 आ गया, तो c की वैल्यू 2c इज इक्वल्स टू 8, सो c की वैल्यू 4 आ गई, तो c भी निकल करके आपका आ गया, c की वैल्यू 4 आ गई। अब b रह गया, तो b का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 0, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए बी आ जाएगा, और प्लस बी आ गया, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं है, ए की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखी है 1/2, तो देयर फोर बी की वैल्यू हो गई -1/2, क्योंकि 1/2 यहाँ रखेंगे, ट्रांसफर कर दिया तो -1/2 आ गया, ए बी सी मिल गया। तो फ्रॉम द फर्स्ट, यही हमारा इक्वेशन है भाई, है ना। सो फ्रॉम फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1 dx इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या आई थी 1/2 dx अपॉन x + 1, b की वैल्यू क्या आ गई -1/2 एंड dx अपॉन x - 1, और c की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, c की वैल्यू आई 4, तो +4 इंटू dx अपॉन x - 1 होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 1/2 log मॉडुलस ऑफ x + 1 -1/2 log मॉडुलस ऑफ x - 1, और +4 x - 1 होल स्क्वायर, राइट। तो पावर ऊपर कर ले -2, और फिर n वाला फॉर्मूला लगा दें, तो ये हो गया 4 इंटू एक्स - 1 टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, and with some constant c. Okay, so apply the log rule, 1 by take 2 as common, so log of x + 1 upon x - 1, ये हो गया, और ये आपका हो गया माइनस, सो दिस इज -4, और ये आपका नीचे आ जाएगा x - 1 plus c, and this is the final answer of this question. Okay, और एक क्वेश्चन मैंने कौन सा कहा था, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 you will try yourself. Okay, the question number 14 सीधा सीधा आपका फॉर्म है, फॉर्म लगा देंगे और सॉल्व कर दीजिएगा। 3x - 1, बट ओनली एक ही लीनियर फैक्टर है, एक को 0 रख लेंगे, फिर इक्वेट कर लीजिएगा। 3x - 1 अपॉन x + 2 होल स्क्वायर है, तो इसको लिखा क्या जाएगा, a अपॉन x + 2 एंड प्लस b अपॉन x + 2 होल स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा, एलसीएम तो आपका यही हो जाएगा, तो क्या बनेगा, x + 2 कैंसिल होके x + 2 बचेगा, और प्लस बी आ जाएगा, आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट फॉर्म।
नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है कि जो आपके बुक में फॉर्म नंबर लिखा हुआ होगा 1 2 3 हम लोगों ने कर लिया, 4 भी कर लिया, फिफ्थ फॉर्म लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एंड एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस होल स्क्वायर। हाँ जी, चलिए। सो इन दिस फॉर्म पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म है, ठीक है ना। यानी कि एक फैक्टर तो लीनियर है और है, देखो पहले ये फर्स्ट ये देखना है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो नाउ द फ्रैक्शन इज प्रॉपर, व्हाई? बिकॉज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2 और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 3, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इट मींस इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सॉरी। तो जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब देखेंगे कि डिनोमिनेटर का एक फैक्टर आपका लीनियर है और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है। लेकिन अब तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया कि डिनोमिनेटर का जितना भी फैक्टर था वो सारा का सारा लीनियर था, लेकिन यहाँ पर एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। सो इस फॉर्म को जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लीनियर के लिए तो a अपॉन एक्स माइनस ए और क्वाड्रेटिक के लिए लिखा जाएगा बी एक्स प्लस सी, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। इस फॉर्म से हम लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बेस पे कौन कौन सा क्वेश्चन है? इस फॉर्म के बेस के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ठीक है। तो 3 में से 2 क्वेश्चन मैं कर दूंगा और एक क्वेश्चन आप कर लेंगे, ओके। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन। तो सेवेंथ क्वेश्चन इज x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको भी हम लोग a ले सकते हैं 1a अपॉन दिस, ठीक है। जब इसको ले लेंगे तो फिर बी एक्स प्लस सी करना पड़ेगा या इसको भी, तो आगे पीछे हम ले सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसी को ए लिया जाएगा या इसको ए लिया जाएगा, ठीक है। इट इज एज पर योर कन्वीनियंट, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले लीनियर को ले लें बाद में क्वाड्रेटिक को ले लेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज ए अपॉन एक्स माइनस 1 और क्वाड्रेटिक हो गया आपका बी एक्स प्लस सी एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, पार्शियल अप्लाई हो गया, राइट। एंड आफ्टर अप्लाइंग द पार्शियल एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा, कैंसिल हो ही जाएगा ये। सो x इज इक्वल्स टू, सो एलसीएम इज डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा एक्स माइनस 1। अब ए बी सी की वैल्यू निकाल दें, तो एक फैक्टर तो आपका लीनियर है, ब्लाइंडली आप जीरो पुट करके फाइंड कर लीजिए कि पुट x माइनस 1 एज 0, तो इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 1 और a इंटू 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 और ये आपका हो गया 0। सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/2, a की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। अब हमारे पास b भी नहीं है और c भी नहीं है, तो b और c को निकालना पड़ेगा। तो देखिए कि b कैसे निकलेगा, यहाँ bx है और x है तो मल्टीप्लाई कर दिया तो bx स्क्वायर हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हम इक्वेट कर सकते हैं, राइट। और c को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते तो कांस्टेंट हो गया, इधर आपके पास नहीं है, अच्छी बात है, 0 आ जाएगा हमारा, तो लिखना पड़ेगा इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, है ना, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इक्वेट कर लेते हैं। तो पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, a इंटू एक्स स्क्वायर a, bx इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर b, राइट, हो गया भाई। अब आ जाइए कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड में 0, a इंटू 1 a, और ये हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा -c। a की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी 1/2, तो b की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो c इज इक्वल्स टू a हो गया, और a की वैल्यू भी 1/2 आ गई। तो इस तरह से आपकी a की वैल्यू भी आ गई, b भी आ गई, और c भी आ गई। नाउ इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। तो from first integration of x upon x square plus 1 into x minus 1 dx is equals to a की वैल्यू रख देते हैं भाई, तो 1/2 dx upon x minus 1, और प्लस b की वैल्यू रख दीजिए, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, -1/2 है, तो -1/2x, और c की वैल्यू भी है 1/2, एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2 log मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, और यहाँ से हम लोग 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो -1/2 निकाल दीजिए आप, तो ये क्या बन जाएगा आपका x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया। और अब यहाँ पे सेपरेशन की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, सेपरेशन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो 1/2 log मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 एंड -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आ गया आपका 1/2 log x माइनस 1, और इसको t पुट कर दें, कि पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 st, तो 2x dx is equals to dt, so we got x dx is equals to 1/2 dt, so this is -1/4 dt upon t, dt upon t, ओके। और ये तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये तो आपका 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, यहाँ पे लगा देते हैं अब रिजल्ट, तो दिस इज 1/2 log x माइनस 4 x माइनस 1, एंड माई 1/t का मतलब log मॉडुलस ऑफ t, तो 1/4 log, और t की वैल्यू क्या हो गई आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1/2 tan इनवर्स x एंड प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ओके, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 13, ओके, तो द 13th क्वेश्चन इज, 13 ले लेता हूँ, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 13 आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, मैं 15th ले लेता हूँ, ठीक है, 13th यू विल ट्राई, मैं क्वेश्चन नंबर 15th ले लेता हूँ, 13th आप करोगे खुद, 15th ले रहा हूँ मैं। 15th में क्या दिया हुआ है, 1/x⁻⁴ ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। आगे फर्दर क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया भाई, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे दो लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, कोई बात नहीं, दिस अपॉन ए कर लेंगे, इसको बी अपॉन कर लेंगे, और इसके लिए सी और डी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो दिस इज 1/x minus 1 into x plus 1 into x square plus 1 can be written as
a upon x plus 1 plus b upon x minus 1 plus c x plus d upon x square plus 1। ठीक है। अब बार बार मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमने इसको ये लेना है। मैंने देखिए जानबूझ करके यहाँ पे चेंज कर दिया। अब मैंने पहले फैक्टर को दूसरे फैक्टर को ए के साथ ले लिया, पहले को बी के साथ ले लिया और इसको सी और डी के साथ ले लिया। ठीक है, तो इट इज अप टू अस, किसी को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं विद द सेम प्रोसेस। एलसीएम तो आपका यही आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बचा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। b के नीचे x माइनस 1 है तो ये कट गया, क्या बच गया आपका b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सी एक्स प्लस डी इंटू ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, चलिए सर, अब दो तो लीनियर फैक्टर है, दो को तो जीरो पुट कर ही देते हैं। पुट x माइनस, चलो x माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, पहला लीनियर फैक्टर, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -1 आ गई। तो 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया आपका भाई, a इंटू -1 -1 -2 -1 का स्क्वायर 1 इंटू प्लस 1 यानी कि 2, और बाकी तो आपका ये आपका 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन गया, सो -4 हो गए। सो a की वैल्यू निकल के आ गई -1/4। वी गॉट द वैल्यू ऑफ a, a इज -1/4। a मिल गया हमें। दूसरा फैक्टर क्या है, पुट x माइनस 1 इज 0, x इज इक्वल्स टू 1, सो 1 इज इक्वल्स टू ये 0 आ गया आपका, b इंटू 1 प्लस 1 2 आ गया, और 1 प्लस 1 2 आ गया, तो बाकी तो आपका 0 हो गया ना भाई। सो b की वैल्यू भी आ गई 1/4, तो b भी निकल के आपका आ गया। तो रह गया c और d। तो c और d का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे x इंटू सी एक्स यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब करना पड़ेगा, है ना। और d के लिए कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड कांस्टेंट। ठीक है भाई, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब है नहीं आपका, 0 हो गया। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब a आ गया, और b इंटू एक्स स्क्वायर a प्लस b हो गया भाई, और c x इंटू एक्स c हो गया। a प्लस b, a और b की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो क्या वैल्यू आ गई सर, -1/4 प्लस 1/4 प्लस c, तो c की वैल्यू आपकी आ गई 0। c की वैल्यू 0 आ गई सर, है ना। अब कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं क्योंकि डी भी चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, 1, दिस इज 1। यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो गया, -1 प्लस 1 मीन्स -1। यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो गया भाई, 1 प्लस 1 यानी 1 इंटू 1 का मतलब +1, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया, d प्लस 1 यानी कि प्लस d आ गया, तो d की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 1 आ गई, 1 आएगी, ये चेंज आ जाएगा भाई। कांस्टेंट ले लेते हैं, तो कांस्टेंट ले लिया तो इधर भी तो कांस्टेंट आएगा कुछ, एक मिनट, a इंटू 1 a आएगा ना, a के साथ भी तो कांस्टेंट आएगा, a के साथ भी कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर जब हम लोग कांस्टेंट टर्म लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया, इधर कांस्टेंट आपका आ जाएगा -1 इंटू ए यानी कि -a आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस b आ गया, और इसके बाद सी एक्स और -1, ये तो आएगा नहीं, -d आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका
तो 1 इज इक्वल्स टू द माइनस ए, तो ये हो गया प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस डी। तो 1/4 1 इज इक्वल्स टू 1/4 1/4 2/4, दैट इज 1/2 माइनस डी। तो डी की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 का मतलब -1/2। तो इस तरह से हमें डी भी मिल गया, डी भी मिल गई, ए बी पी बी सारी वैल्यूज आ गई। अब ए बी सी डी की वैल्यू को इंटीग्रेशन में रख देते हैं। सो फ्रॉम दिस रिलेशन, फ्रॉम फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रेज टू 4 माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या आई थी -1/4 dx अपॉन x प्लस 1, बी की वैल्यू +1/4 dx अपॉन x माइनस 1 और प्लस सी एक्स, तो सी तो हमारा 0 हो गया, तो पूरा टर्म ही 0 हो गया भाई, है ना। और डी की वैल्यू हो गई -1/2 और डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 dx, तो ये हो गया आपका -1/4 लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, 1/4 लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, और ये आ गया आपका -1/2 कांस्टेंट हो गया dx अपॉन x² प्लस 1, और यहाँ पे x² प्लस a² का फॉर्म लग जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे 1/4 एस कॉमन लॉग और x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 and -1/2 tan inverse x plus c, and this is the final result of this question. Okay, now one more type of form which is not mentioned in the exercise but the question is given, क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि सर ने अभी जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया वो सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन का हो गया है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों सेम आ जाए, या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी हो सकता है ना। तो इस केस पे हमारे पास एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। तब उस केस में हम क्या करेंगे, यानी कि इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो इन द केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से पहले इंटीग्रेशन को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है कि हमारा फॉर्म क्या बन रहा है। पहले अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो पहले ये देख लीजिए कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो प्रॉपर पे जाके हम पार्शियल लगाएंगे, इम्प्रॉपर है तो उसका हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, और डिवाइड करने के बाद मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कैसे डिवाइड करेंगे। इसको पहले डिवाइड करेंगे ना, हम जो घड़ी वाला ऐड होता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले डिवाइड करें और उसके बाद इंटीग्रेट करें, राइट। तो आफ्टर डिवीजन के बाद, डिवाइड करने के बाद क्या लिखेंगे, रीराइट क्या करेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस फॉर्म पे ले आएंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। और ऐसा करने के बाद ये आपका पहला वाला फॉर्म बन के आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में आया। अब इसके बेस पे आपके पास दो क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका और एक क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 12 है। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 12 दोनों को डिस्कस करूंगा। पहले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 6, और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा सा रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे, राइट। क्वेश्चन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लिया, x माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो आ गया ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए मैंने क्या लिखा, पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको, और डिवाइड करके कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर का फॉर्म दे देते हैं। तो माइनस 2x स्क्वायर, मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और डिवाइडेड विद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एंड प्लस x/2, change the sign, this will cancel out, so 1 minus x/2, 1 minus x/2, और you may write 2 minus x upon 2। तो ये डिवीजन होने के बाद कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो कोशेंट इज इक्वल्स टू हो गया, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x कैन बी रिटन एज कोशेंट, दैट इज 1/2, ठीक है भाई। प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू, और डिवाइजर, डिवाइजर इज, व्हाट इज द डिवाइजर, यही हमारा डिवाइजर था, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, तो जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, x इंटू 1 माइनस 2x, ओके, x इंटू 1 माइनस 2x, x इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है, हो गई बात क्लियर। चलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx एंड प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन गया भाई, चलो इसको तो हम लोग क्या लिख दें, 1/2 dx का मतलब हो गया x/2 हो गया, और प्लस 1/2 इसको हम लोगों ने I1 मान लिया। अब I1 को सॉल्व कर लेते हैं, और I1 आपका देखिए पहला फॉर्म आ जाएगा, है ना भाई, कि I1 इज इक्वल्स टू, अब I1 को लेके चलते हैं, तो I1 इज इक्वल्स टू, I1 को ही सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। सो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू, क्या ले लें इसके साथ, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस 2x, है ना, हमेशा पहला वाला फॉर्म जाएगा आफ्टर डिवीजन, तो a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस 2x, एलसीएम ले लें, आगे बढ़िए, 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 2x प्लस बी एक्स, एक बार इस फैक्टर को जीरो कर दें, एक बार दूसरा फैक्टर जीरो कर देते हैं, सो पुट x is equals to 0, so this is 2 a into 1 माइनस 0 यानी कि 1, ये तो 0 ही हो गया आपका, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 2, और दूसरा फैक्टर क्या है, पुट 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू 1/2 हो गई, तो यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग इसको, कहाँ रखा था, यहाँ रखा था ना, ठीक है। सो 2 माइनस 1/2, so this is equals to 2 minus 1/2 is equals to, ये तो 0 हो गया आपका, प्लस b इंटू 1/2, तो 3/2 is equals to b/2, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, सॉरी b की वैल्यू 3 आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू हो गई, सो I1 is equals to twice integration of dx upon x and -3/2, 3, चलो बाद में कर लें इसको, पहले डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो
प्लस बी की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2x, तो ये हो गया आपका 2 log x हो गया, और 1 माइनस 2x का मतलब ये हो गया -2, सो -3/2, और कितना हो जाएगा log 1 माइनस 2x, ठीक है, और प्लस C1, और इस वैल्यूज को जाकर के यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं I1 की जगह पे। ओके, सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू x/2 और x/2 एंड प्लस 1/2 I1 है, ध्यान रखा है, प्लस 1/2 इंटू I1 इज 2 log x minus 3/2 log of 1 minus 2x and plus c, बेशक कर लें। सो दिस इज फाइनली x/2, ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो log x हो गया, और ये हो जाएगा -3/4 और log 1 minus 2x and plus c, and this is the final answer of this question number 6. Okay, got it? Okay, so now the next type of question, आप कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, नॉट 13, 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है आपके पास, x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, है ना भाई, क्लियरली इम्प्रॉपर है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 3, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2, पहले डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड कर दीजिए भाई, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया कि x² माइनस 1 x³ प्लस x प्लस 1 x, तो ये हो गया x³ और माइनस x, साइन चेंज हो गया, कैंसिल, देन 2x प्लस 1, तो दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिखना है इसको, x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, कोशेंट इज x, रिमाइंडर इज 2x प्लस 1, डिवाइजर इज x² माइनस 1, ठीक है, हो गया ना। अब इंटीग्रेशन कर लें इसका, सो इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 dx is equals to integration of x dx and plus integration of 2x plus 1 upon x² minus 1 dx। ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका x²/2, और इसको हम लोग I1 मान करके और इसको सिंप्लीफाई कर लें, या इसको सेपरेशन लगा लीजिए यहाँ पे, या फॉर्म लगाना है फॉर्म लगा लीजिए, चॉइस इज योर्स, ठीक है। अब आकर के देखिए, अब यहाँ पर या तो चूंकि एक्सरसाइज हम उससे रिलेटेड कर रहे हैं पार्शियल से, तो पार्शियल अगर लगाना चाहें तो इसको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, एक पार्शियल लग जाएगा, या सेपरेशन लगा दें तो 2x अपॉन x² माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, और नीचे वाले को टी पुट कर देंगे तो x dx की वैल्यू मिल जाएगी, और अगले में फॉर्म लग जाएगा। तो दोनों तरह से इसको कर सकते हैं, तो इतना हिंट दे करके मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है भाई। अगर पार्शियल नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर दीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x² माइनस 1 dx और प्लस dx अपॉन x² माइनस 1 dx, हो गया भाई। अब इसको टी पुट कर दीजिएगा तो टी आ जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। दिस इज 2x अपॉन x² प्लस 1 dx और प्लस 1, तो जब हम इसको टी पुट कर देंगे, x² प्लस 1 को टी पुट कर दिया तो 2x dx की वैल्यू मिल गई, 1 अपॉन टी हो गया, लॉग आ गया, ये सीधा फॉर्म हो गया आंसर, बच गए पार्शियल लगाने से। तो पार्शियल से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है ना।
तो अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1st, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो क्लियरली हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड dt बाई t हो गया अब आपका। और यहाँ पे फॉर्म लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का फॉर्म लगेगा भाई, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म लगाइए, तो क्या बचा आपका 1/2 log मॉडुलस ऑफ x माइनस ए मीन्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस ए, x प्लस 1 और प्लस c। तो फाइनली ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 1/2 का मतलब log मॉडुलस ऑफ t, और t की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है भाई। ठीक है ना, तो log मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 1/2 log ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड प्लस सी, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पार्शियल ही लगाएं इसमें, हम एग्जामिनेशन में ऐसे भी कर सकते हैं, बट चूंकि एक्सरसाइज बेस्ड है पार्शियल की, तो पार्शियल भी लगा सकते थे। ओके, नाउ अब जो कुछ क्वेश्चंस बचे इस एक्सरसाइज के, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फॉर्म्स, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, अब तक हम लोग तो एज पर द फॉर्म कर रहे थे मिक्स टाइप, बट एनी हाउ ऑलमोस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16। ओके, अब यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा हिंट्स देता चलूंगा और आप कंप्लीट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x into x to the power n plus 1 dx, राइट। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करें इसको कि x to the power n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज x to the power n minus 1 divided by x to the power n minus 1 into x। ठीक है भाई, x to the power n plus 1, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया x to the power n minus 1 से, और अब इसको करने के बाद x to the power n minus 1 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया x to the power n minus 1 plus 1 का मतलब x to the power n हो गया। ठीक है भाई और into x to the power n plus 1 हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। और अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं x to the power n को t, तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा ये आपका n into x to the power n minus 1 dx is equals to dt आ गया, तो ये बन गया आपका 1/n, है ना भाई, 1/n dt अपॉन ये हो गया t और ये हो गया t प्लस 1। अब देखिए ये आपका पहला फॉर्म आ गया, अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा कि 1/t इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू a/t प्लस b/t प्लस 1, और जैसे पहले फॉर्म में सॉल्व किया है वैसे सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा वो यहाँ पे रख दिया जाएगा, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कंप्लीट कर ले जाएंगे। मैं इस तरह ही क्वेश्चन का हिंट देता चलूंगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। 17th question is cos x upon 1 minus sin x into 2 minus sin x dx। यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं, पुट sin x as t, तो ये हो गया cos x dx is equals to dt, तो इंटीग्रेशन हमारा हो गया dt अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, और अब आपका ये फॉर्म आ गया सर 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस टी एंड प्लस b अपॉन 2 माइनस टी, और पहले फॉर्म पे आ गए और फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए
और अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन जो हो जाएगी, जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी द आंसर। ओके, तो इतना इतना मैं हिंट दे करके आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। 18th question is x square plus 1 into x square plus 2 divided by x square plus 3 into x square plus 4 dx। तो अभी यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, नीचे भी एक्स टू दी पावर 4, डिग्री रिमेन सेम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन केस। लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर एज टी मान लेते हैं। तो क्या हो गया अब आपका, ये एक्स स्क्वायर एज टी ले लिया, या एक्स स्क्वायर को वाई ले लीजिए, टी मत लेते हैं, एक्स स्क्वायर एज वाई। तो ये हो गया आपका वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। ठीक है भाई, तो ये बन गया आपका वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो जब डिवाइड कर दिया तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 एंड वाई स्क्वायर प्लस 3y एंड प्लस 2, सो माइनस सॉरी प्लस 1, so y square plus 7y plus 12, change this sign, cancel out, minus 4y and minus 10। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका ठीक है, minus 4y और minus 10। then this can be written as पार्शियल भी तो लगाना पड़ेगा ना इसमें। सो कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो ये आ गया, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से -2 कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो गया 2y प्लस 5 हो गया। ठीक है, 2y अपॉन 5 आ गया। तो दिस कैन बी रिटन एज, क्या था क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, और इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू कोशेंट 1 और माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सो रिमाइंडर इज 2 इंटू 2y प्लस 5 अपॉन डिवाइजर y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन तो आपका x हो जाएगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दें हम लोग, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो चलो यहाँ लगा भी देते हैं, लेकिन अभी नहीं लगाते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 2y प्लस 5 अपॉन वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू ए अपॉन वाई प्लस 3 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4। तो ये हो गया हमारे पास 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू ए इंटू वाई प्लस 4 प्लस बी इंटू वाई प्लस 3। अब a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो a और b की वैल्यू निकाल देते हैं। पुट y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू -4, तो -4 टू 8 प्लस 5 -3, ओके, इज इक्वल्स टू 0, और प्लस b, और -4 प्लस 3 मीन्स -1,
तो b की वैल्यू आपकी आ गई 3। और एक और बार पुट कर लेते हैं, कौन सा फैक्टर बचा, y+3। सो पुट y+3 is equals to 0, so y is equals to -3, so -6 + 5 -1, and this is a into -3 + 4 यानी कि 1, ओके, और दिस इज 0, तो a की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया इसका, इस पार्ट का इंटीग्रेशन, तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ y² + 3y + 2 अपॉन y+3 यानी कि y² + 7y एंड +12 इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्म था हमारा, y+1 था ना, y+1 इंटू y+2 अपॉन y+3 इंटू y+4। तो अब पहले y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन हमारा उसी फॉर्म में है, x² + 1 इंटू x² + 2 अपॉन x² + 3 इंटू x² + 4 dx। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है अब आपको। तो ये हो गया कोशेंट, यहाँ से भाई, यहाँ से देखिएगा कहाँ चला गया हमारा, ये चीज़ है ना, इसका इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि अब हम फाइनल जा रहे हैं इंटीग्रेशन पे। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस x माइनस, और यहाँ क्या था हमारा 2 था, इंटू 2, और इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dx अपॉन x² प्लस, कहाँ थे हम लोग, a की वैल्यू कहाँ रखी, dx अपॉन x² + 3, है ना, ये था ना हमारा, y+3 था, a की वैल्यू डाल दें, a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू b is 3, a की वैल्यू -1, तो -2 dx अपॉन x² + 3, और प्लस b की वैल्यू आई थी हमारी 3, तो +3 इंटू dx अपॉन x² + 4। ठीक है, अब इसको फॉर्म पे ले जाना पड़ेगा। सो x - 2 dx अपॉन x² + √3 का स्क्वायर हो गया, और +3 इंटू dx अपॉन x² + 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब इसको फॉर्म पे ले लेते हैं और फाइनल आंसर बना देते हैं। सो द फाइनल आंसर इज, okay, and the final is, so integration is equals to x - 2 by a √3 tan inverse x by √3 plus 3 by 2 tan inverse x by 2 plus c. This is the final result. Okay, और इंटू 1/2 भी तो हो जाएगा ना, इंटू 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो x - 2 by √3 tan inverse x by √3 and -3 tan inverse x by 2 plus c. Okay, so this was the question number 20. Question number 19, 19th क्वेश्चन के लिए हिंट देता हूं मैं।
question number 19th. 19th question is 2x upon x square plus 1 into x square plus 3 dx. This is the question. अब यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि let x square as t मान लें, है ना. ये पुट कर दीजिए या लेट पुट ही कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, आसानी हो जाएगी. पुट x square as t, so 2x dx is equals to dt. तो 2x dx मीन्स हो गया dt अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 3. अब सीधा सीधा ये फॉर्म आ गया. ये तो आप फिर कर सकते हैं ना कि 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 3. So this can be apply the partial a t plus 1 and plus b upon t plus 3. Okay, and take the LCM and proceed just like the form number 1. Okay, and the next question, question number 20. The question number 20 is dx upon x into x to the power 4 minus 1. ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें. ठीक है. और साथ में 1/4 यानी कि 1/4 4x क्यूब अपॉन x टू दी पावर 4 इंटू x टू दी पावर 4 माइनस 1. ऐसा कर दिया. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा. और अब इसके बाद पुट x रेस टू दी पावर 4 को t पुट कर दें, तो 4 टाइम्स x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt हो गया. तो इंटीग्रेशन हो गया आपका 1/4 dt अपॉन t इंटू t माइनस 1. और अब यहाँ पे पार्शियल लगा देते हैं कि 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू a बाई टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1 एंड देन प्रोसीड. और उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपके पास? dx अपॉन e टू दी पावर x माइनस 1. इसमें भी हम लोग कुछ तिकड़मबाजी कर दें कि e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए. ठीक है. और अब इसको पुट कर दीजिए e टू दी पावर x एस टी. तो e टू दी पावर x dx इज इक्वल्स टू dt. तो इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो गया dt अपॉन टी इंटू टी माइनस 1. और ये पहला ये वाला फॉर्म लगा दीजिए लाइक दिस. तो 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू a बाई टी एंड प्लस b अपॉन टी माइनस 1 एंड प्रोसीड. ठीक है, हो जाएगा. चलिए जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 कि x dx x माइनस इज इक्वल टू. तो पहला पार्ट ही लगेगा आपका, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दीजिएगा. ठीक है भाई. तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2. उसके बाद आगे सॉल्व करके MCQ देख लीजिएगा. और 23 हमारे पास दे रखा है dx अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म हो जाएगा. तो इसमें फॉर्म लगा देंगे कि a बाई एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद सिंपलीफाई कर दीजिएगा. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर partial fraction. So I think you like this video. If you like this video, please press the like button and share this video to all your friends so that they may be benefited during examination time. Or your examination is आपके बहुत पास है. So very best of luck for your examination also. Thank you.
ये कंप्लीट होगी।